The topic is sets and their representation. Basically, in everyday life, if we often speak of collection of objects of a particular kind, such as pack of cards, a crowd of people, a cricket team. In mathematics also, we come across these collections. For example, the collection of natural numbers, collection of the prime numbers. More especially, we examine the following collections like this. It is an odd number less than 10. It is 1, 3, 5, 7, 9 like this. Various kind of triangles, right? So basically it is a well-defined collection of objects, and this well-defined collection of objects is called as set. Now there are some notations here. The various sets are denoted by a letter here. So let us look at this notation first. The set of natural number is denoted by n, capital N. If it is written capital N, it means it is a set of natural number. Natural number n for natural number, and it is denoted by capital N. So the set of integers is denoted by Z. So integer means all the numbers 0, 1, 2, positive numbers, all the negative numbers. तो A to Z सारे numbers integers में आ जाते हैं A to Z. तो positive भी, negative भी and zero भी. So A to Z, so we denote integer by Z. So like this you can remember it. Rational number. So rational number is denoted by, what is the definition of the rational number? The rational number is of the form, the number in the form of P by Q. Q. So take this Q from here. यहाँ से Q आप remember रख सकते हैं. तो रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से. Q, right? इस चैप्टर में रियल नंबर R is the R for real number. It is denoted by R. And look at this. Integers are denoted by Z. And if it is written like this, Z plus. So Z plus means we take it is a set of positive integers, right? And if it is written Q plus like this, what is Q? Q is a rational number. अगर Q plus वहां पे लिखा हुआ है, Q plus का मतलब है positive rational numbers, right? R plus means positive real numbers. So sometimes in this chapter we are not going to write all this statement. तो हम लोग short form में इनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे. अगर आपको कहीं पे n लिखा दिखाई देता है तो उसका मतलब नेचुरल नंबर्स है. Z का मतलब यहाँ पे होगा इस चैप्टर में इंटीजर्स, Q का मतलब होगा रेशनल नंबर और R का मतलब होगा रियल नंबर, राइट? और अगर वहां पे प्लस पुट किया हुआ है ऊपर तो इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर्स, और अगर वहां पे नेगेटिव पुट किया हुआ है इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव नंबर्स, राइट? जैसे लिखा, अगर यहाँ पे मैं लिखूं Z माइनस, तो Z माइनस मीन्स इट इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. दिस सम नोटेशंस, इंपॉर्टेंट नोटेशंस आर देयर which we must know. So if I ask you to that collection of 5 most renowned mathematician of the world, is it a set or not? Most renowned mathematician of the world, it's vary from person to person. So that condition is not well defined, right? So that thing is not called set. So basically set is a well defined collection of objects. So well defined word we have discussed in the previous class, right? Now there are some points here. These points to be noted. What are that point? Objects, elements and members of a set are synonyms terms. तो कहीं पे ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करें या एलिमेंट वर्ड यूज करें या मेंबर वर्ड यूज करें ऑफ अ सेट, ये सारे सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज. सेकंड थिंग इज सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C X Y Z. सो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज, जो एलिमेंट होते हैं सेट के, द एलिमेंट ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स जनरली. तो जैसे एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल A B C X Y Z एक्सेट्रा, राइट? सो दीज आर द सम पॉइंट्स. सेट्स आर denoted by capital letters, elements are denoted by small letters, and object, element and members, this is the synonyms words, right? Now next thing is we are going to talk about the symbol here. So there is a symbol here. Now there is a Greek symbol. That symbol is called as epsilon, and it is basically used to use at the place of belongs to. Suppose if A is an element of set A, and we can write A epsilon capital A. What does it mean? It means is A is the element of set A. Let me explain this thing.
here with the help of example, then it will be more clear to you. Suppose a there is a set A having the two element 1 2, right? So what is this element 1 and 2? So we can say that 1 is the element of set A. So we can write like this: 1 is the element of set A, right? Or we can also say that 1 belongs to set A. 1 belongs to set A. So basically this belongs to set A. 1 belongs to set A, right? So if you look at this symbol here, this epsilon symbol means belongs to. अगर इसको पैराज में हम लोग लिखें तो इट मीन्स बिलोंग्स टू, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है, ये स्टेटमेंट है 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है, ऐसे बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए को बिलोंग करता है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब इसको लाइक दिस बाय यूजिंग दिस ग्रीक सिंबल, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। दिस इज द इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग दिस सिंबल। तो एट द प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस आई कैन राइट लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस की जगह पे इज द एलिमेंट ऑफ सेट, तो आई पुट दिस सिंबल ओनली, आई पुट दिस सिंबल एप्सिलॉन, right? So epsilon means if it is epsilon there, it means what does it mean this statement? If you look at this 1 belongs to A, 1 belongs to A का मतलब क्या हुआ? 1 belongs to A का मतलब ये हुआ कि 1 A का एलिमेंट है, right? 1 belongs to A और 1 is the element of A. So 1 epsilon A means 1 is the element of A, right? Or we can write like this also. Look at this 2. Is 2 belongs to A? Yes, 2 belongs to A. So we can write like this also. Now, if it is not an element of A, if it is not an element of A, तो उस केस में क्या होगा? That is called as not belongs to. That thing is called as not belongs to, right? And it is denoted by belongs to को epsilon से denote करते हैं और not belongs to को epsilon को कट कर देते हैं ऐसे, right? तो इफ इन फॉर दिस सेट ए, अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट ए के लिए क्या 3 A को बिलोंग करता है? नो, 3 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। सो व्हाट द एलिमेंट, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिस एप्सिलॉन, दिस सिंबल एप्सिलॉन ग्रीक सिंबल, इट मीन्स बिलोंग्स टू। तो इसको जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसको एक छोटा सिंबल फॉर्म में लिखने के लिए, एक इजी वे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने ग्रीक सिंबल यूज किया है। I hope this thing is clear little bit to you. Now let us try to understand this thing with the help of example. Look at this. It is a set A having element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 5 is 5 and we need to put these two symbols here. यहाँ पे दो सिंबल भरने हैं, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट। तो देखिए 5 बिलोंग करता है A को, yes, so we put this symbol 5 belongs to A. 8 बिलोंग करता है A को, is 8 is the element of A? No, so we put this symbol here. Is 0 is the element of A? No, so 0 do not belongs to A. Is 4 belongs to A? Yes, 4 belongs to A. So we put this Greek symbol epsilon here. 2 belongs to A? Yes, 2 belongs to A. Is 10 belongs to A? Yes, 10 belongs to A or not? No, 10 do not belongs to A. So like this we can put these symbols here. I hope this thing is clear to you. This Greek symbol epsilon. ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 2. सो नाउ लेट्स मूव टू दिस टॉपिक. इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. सो बेसिकली वी हैव द 2 मेथड्स हियर टू रिप्रेजेंट अ सेट. वन मेथड इज कॉल्ड एज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. सो वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. And the second one is set builder form. So we can represent a set in 2 forms is in our syllabus. One is the roster form. It is also called as tabular form, and second one is set builder form. So let us start the discussion with this first roster form. So basically in roster form, all the element of set are listed and the element are being separated by commas and are enclosed within the braces. तो roster form में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेट के अंदर, राइट? कोमा से सेपरेट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल सपोज अ सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म. अगर हमें लेना है सेट ऑफ इवन इंटीजर लेस देन 7 तो क्या आएगा?
2, 4 और 6. तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सेट इज 2, 4, 6, कोमा लगा के 2 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में रख देंगे, राइट? Now let me explain this to you with some more examples here. So if you look at the example here, suppose in the roster form, if I need to write the vowels, so suppose example is, let me write the example for this first one. If I write the example of vowels, so vowels, each and every vowels is represented separately, A, E, I, O, U, like this, राइट? अगर मुझे लिखने हैं यहाँ पे एक सेट और लिखता हूँ, इसमें आप देखिए रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेट में सेपरेटली, कोमा, विद द हेल्प ऑफ कोमास, पुट इट इनटू द कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे, इसमें लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। व्हाट इज दिस? इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स का सेट है। तो अब आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, आई हैव लिस्टेड द ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। आई होप दिस रोस्टर फॉर्म इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? In set builder form, all the element of set possess a single common property, right, which is not possessed by any element outside the set. तो हर एक सेट के जो एलिमेंट है वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी अटेन करते हैं, होती है उनके पास। जो सेट्स के बाहर एलिमेंट है उनके पास वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा था अभी वोवल्स का, AEIOU, राइट? सो इन दिस ऑल द एलिमेंट्स हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। अगर मैं एक सेट बनाया AEIOU, तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? The common property is, it is the, all these are the vowels in English alphabet, right? And no other letters possess this property. और किसी भी लेटर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी इन 5 के अलावा, right? Look at this, how to represent it in the set builder form. So it is the vowel, this is the roster form I have explained. Now let me represent it in the set builder form. Look at this. If A is written, basically in set builder form, the common property possessed by the element of a set is generally denoted by X, right? This X is the X defines about the element of the set. Now what is X in this A? तो आप X को देखेंगे तो हम लोग इसको X से रिप्रेजेंट करेंगे। X is a vowel. X क्या है? X एक vowel है। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द सेट, बट इन सेट बिल्डर फॉर्म एवरी एलिमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेड, द सेट इज डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, वी कैन से लाइक दैट। इसको एक सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। बी देखिए, बी क्या है? 2, 4, 6, 8, ये कैसी फॉर्म है? ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको। कर्ली ब्रैकेट एक्स लिखेंगे और एक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स एक इवन नंबर है। So like this, I represent this set in the form of statement with the help of X. So we can say that this is the set builder form, right? I hope this is little bit clear to you. Basically what we have, we describe the element of a set by using a symbol X. हम लोग जो element हैं उनको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक सिंबल x हम लोग लेके उसको डिफाइन कर रहे हैं। x ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी अदर लेटर ऑल्सो, y ऑल्सो, z ऑल्सो, राइट, विच कैन बी फॉलोड बाय अ कोलन। हम लोग एक कोलन लगाते हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमने कोलन यूज किया है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज कोलन, दिस टू थिंग्स इज कॉल्ड एज कोलन। तो हम लोग x, y, z एक अल्फाबेट लेते हैं एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉलोड बाय कोलन, कोलन्स लगाते हैं यहाँ पे, राइट। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट के एलिमेंट्स ने जो प्रॉपर्टी पोज कर रखी है वो हम लोग वहां पे लिखते हैं एंड एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द कर्ली ब्रेसेस, राइट। I hope this thing is clear to you. Now let me give you one more example here to better understand this set builder form. Suppose there is a set
and it is written like this. It is 1, it is 2, 3, 4 and 5. सो इन दिस हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। तो ये कैसा सेट है, ये कौन सी फॉर्म है इस सेट की, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिखाता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, एक्स लिखना है फॉलोड बाय सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाया मैंने। अब हमें एक्स को डिफाइन करना है यहाँ पे, राइट। वी हैव टू डिफाइन दिस एलिमेंट एक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्या है ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 5 पे रुक गया है यहाँ पे आके। तो अब मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड इट वी कैन से दैट इट इज लेस देन और इक्वल टू 5। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5, या दूसरा तरीका इसका ये है, आप इसको ऐसे लिख दें एक्स इज लेस देन 6। So this is the statement form and this is called as set builder form. I hope now this set builder and roster form is little bit more clear now. Let us take a question based on this, then it will be more clear to you. Now look at this question here. In this question, write the following sets in roster form. So we need to write this set in the roster form, right? What is this? It is given in the set builder form. तो हमें यहाँ पे set builder form में इन्होंने लिख के दे रखे हैं, एक्स लिखा है फॉलोड बाय कोमाज एंड देन स्टेटमेंट। तो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट रीड कीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेट के अंदर। देखिए इन्होंने दिया एक्स, एक्स को डिफाइन किया, एक्स एक इंटीजर है और जो कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 और 7 पे। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो -3 से बड़ा और -3 के इक्वल, तो -3, नेक्स्ट इंटीजर -2, नेक्स्ट -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेंगे हम लोग यहाँ पे, नहीं लेंगे बिकॉज इट इज लेस देन 7। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट मी फॉर्म द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। लुक एट रीड दिस सेकेंड पार्ट। In the second part, we need to form the roster form. If you read the part here, x is a natural number less than 6. तो हमें वो सारे नेचुरल नंबर लिख देने हैं जो 6 से छोटे हैं। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 को लेंगे, नहीं लेंगे बिकॉज लेस देन 6 लिखने हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है स्टेटमेंट, x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट देयर सम ऑफ द डिजिट इज 8, जिनका सम 8 आए। तो 8 आता है 2 डिजिट नंबर का, पहला डिजिट नंबर है 17, फिर है 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा 8 आने के लिए, 26, 3 के साथ 35, 4 के साथ 44, 5 के साथ लेंगे 53 हो सकता है, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है और 80 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा कोई 8 और सम आएगा, नहीं आएगा। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म से हमने कैसे रिड्यूस कर लिया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। बताइए प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर हो, 2 है, 3 भी प्राइम होता है, 5 भी प्राइम होता है 60 का डिवाइजर। आगे प्राइम नंबर आएगा 7, नहीं करता डिवाइड। प्राइम नंबर आएगा 11, नहीं करता है। प्राइम नंबर आएगा 13, नहीं करता है। प्राइम नंबर 17, नहीं करता है। आगे इसके प्राइम नंबर्स नहीं करेगा ये, क्योंकि इसके फैक्टर्स भी यही हैं, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट हियर, द ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज अब आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, इसमें सेट में हम लोग क्या करते हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया था, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स लिखने हैं, तो टी लिखा पहले, आर लिखा, आई लिखा, जी ओ एन, फिर ओ आया, तो नो नीड टू राइट द सेम एलिमेंट 2 टाइम्स इन अ सेट। सेट में 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है 2 एलिमेंट्स को। एन हम लोग लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, एम एंड इट्स ई, देन इट्स टी हम लोग लिख चुके हैं, नो नीड टू टेक अगेन, आर भी ले चुके हैं एंड वाई। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। लास्ट एलिमेंट देखिए, बेटर, बेटर वर्ड को लिखना है, बेटर में बी लिखा, ई लिखा,
एंड टी हमने लिखा यहाँ पे, और टी दोबारा से आ रहा था, तो नो नीड टू राइट अ सेम एलिमेंट 2 टाइम्स इन अ सेट। जो सेम एलिमेंट होगा उसको सेट में 2 बार नहीं लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ई हम लोग लिख चुके हैं आर। सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग।